لگتا ہے کہ جو کل کی جو پریس کانفرنس تھی کیا اس نے آمنے سامنے نہیں کر دیا خود کو ان کے سامنے، اور کیا یہ اب ایک لکیر کھچ گئی ہے؟ تلخی جو میں آمنے سامنے نہیں کہوں گا، ایکچولی ایک امپریشن پی ٹی آئی کریٹ کر رہی تھی کہ ہماری کو بات چیت ہو رہی ہے یا ہمارے رابطے ہو گئے ہوئے ہیں اور ہم واپس آ رہے ہیں۔ آپ نے بیان سنا ہوگا چند دنوں میں خوشخبری آنے والی، جی ڈیل ہو گئی ہے، یہ مذاکرات ہو گئے ہیں، یہ ایک امپریشن کریٹ کر رہے تھے۔ اس امپریشن کو ڈسپیل کرنے کی ضرورت تھی، اس امپریشن کو کا جو اثرات ظاہر ہو رہے تھے ان کو زائل کرنے کی ضرورت تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کل وہ زائل ہوئے ہیں۔ ایک بڑی کیٹیگورک قسم کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے ایس پی آر کی طرف سے کہ کوئی رابطے نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اور 9 مئی کو جب تک اس 9 مئی کے دن کا جو بھی کفارہ نہیں ادا کیا جائے گا کہ آپ اس کے معذرت کریں یا اکنالج کریں، تو اس کے بعد جو ہے کوئی چیزیں ہو سکتی، بالکل ماحول اچھا کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ تو نہیں کریں گے، صدق کے دل سے معافی جو ہے نہ کریں، لیکن میرا مطلب ہے کہ ان کے بہت سے لوگ جو ہیں، مجھے کل کسی نے کہا کہ جی وہ تو زبردستی لوگوں سے انٹرویو کروائے گئے، چلیں وہ زبردستی کروائے گئے مان لیا، اس کے بعد 4 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزرے ہیں، اپنے انٹرویوز کو ڈس اون کریں کہ ہم نے فلاں کے ساتھ انٹرویو کیا، وہ زبردستی کیا، ہمارے سے کروایا کرے گا۔ اپنی پارٹی کے ساتھ جو ہے وفاداری کا ثبوت دیں، اپنے لیڈر کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیں کہ اس وقت اس لیے ہوا کہ ہم پریشر میں تھے، ہمیں قید رکھا گیا، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی، اس کی وجہ سے ہم نے انٹرویو دیا، کسی نے ڈس اون بھی نہیں کیا۔ نہیں، انکلوڈنگ عثمان ڈار صاحب، پروگرام انہوں نے کیا تھا، مگر اس کے بعد وہ پھر پارٹی میں دوبارہ واپس بھی آ گئے۔ نہیں، ڈس اون تو نہیں کیا، انہوں نے کامران شاہد کے ساتھ جو گفتگو کی اس کو ڈس اون تو نہیں کیا، یا علی زیدی صاحب نے جو گفتگو کی اس کو ڈس اون تو نہیں کیا، لیکن ایک پریشر تو بتایا گیا اور ایک پروپیگنڈا تو ہے۔ لیکن آج یا 4 یا 5 یا 6 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد یا 10 مہینے کے بعد وہ ڈس اون تو کر سکتے ہیں نا کہ بھائی اس وقت جو کچھ میں نے کیا وہ میں نے اس لیے کیا کہ میں دباؤ میں تھا، یا مجھے کہا گیا تھا۔ کہیں ضرور کہیں، اگر وہ اپنے کریڈینشلز جو ہیں ایز پولیٹیکل ورکر، جینوئن پولیٹیکل ورکر جو ہے یہ لوگ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، کہیں آج بھی بہت سے لوگ جو ہے سرفیس ہوئے ہیں بڑے بڑے مہینوں کے بعد بول نہیں رہے، وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں بول رہے، وہ سارے جو ہے نا وہ جو ریڈار کے نیچے رہ رہے ہیں کہ تاکہ ریڈار پہ نہ آئیں، تاکہ وقت آنے پہ وہ باہر نکلے نا، وقت آنے پہ باہر نکلے۔ لیکن یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی سنسیریٹی نہیں ہے، نہ ان کے کریکٹر میں سنسیریٹی ہے، خلوص ہے یا وفاداری نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایز اے پارٹی آلسو، مجھے بات ساری دنیا میں پارٹیز جو ہے نا وہ اپنی کارکردگی کے اوپر جو ہے نا وہ سیاست کرتی ہیں، یہ اپنی 4 سال کی کو کارکردگی بتائیں، 10 سال کی کے پی کی کارکردگی بتائیں، ایک بات بتا دیں۔ تو خیر صاحب، اب ہم یہ سمجھے کہ اب وہاں سے تو بات چیت کا دروازہ بند ہے اور اب وہ سیاسی جماعتیں بات کریں گی، سیاسی جماعتوں سے خان صاحب بات نہیں کرنا چاہتے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، خان صاحب کا ڈیلی ٹیلی گراف میں جس میں انٹرویو آیا کہ جی میرے قتل کرنے کا منصوبہ بنا ہوا ہے، اور یہ آرمی چیف نے انہوں نے الزام لگایا کہ انہیں بنایا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی دوسرے تیسرے دن ان کا بیان آ گیا کہ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں کہ لیکن ہم بات چیت صرف آرمی چیف سے یا ڈی جی آئی ایس آئی سے بات کریں گے۔ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جی، وہ کہا کہ ہم سیاسی جماعتوں سے نہیں کریں گے، یہ 3 جو جماعتیں باقیوں سے کریں گے، یہ قیادت جو ہے فوج کی قیادت اس سے بات کریں گے۔ اب کون سی بات صحیح ہے یا کون سی بات غلط ہے، یا ان باتوں میں جو تضاد ہے کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ میرے قتل کا منصوبہ فلاں شخص نے بنایا ہوا ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ اگر بات چیت ہوگی اس شخص سے ہوگی۔ دیکھیں، میں نے کل بھی ریفرنس دیا، ان کی جو ہمشیرہ محترمہ ہیں انہوں نے کہا کہ آج ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہمیں پتہ لگا ہے کہ پہلے بھی زیادتی ہوتی رہی ہے، اور انہوں نے معافی مانگی اس کے اوپر، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ تمام قوتوں کو مل کے جو ہے کوئی انصاف کا جو سسٹم ہے ٹھیک کرنا چاہیے۔ بالکل 100% ان کی بات ایکسیپٹیبل ہے، اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن سیاسی قوتوں میں بات چیت کریں۔ مگر خیر صاحب، اب جیسے کل کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں نے کہا جوڈیشل کمیشن آپ بنانا ہے تو 14 سے بنائیں، آپ دھرنے کا بنائیں، آپ
PTV पे हमले का बनाएं, आप पार्लियामेंट पे हमले का बनाएं, इसका मतलब है कि फ़ौज ज़हनी तौर पर तैयार है कि अगर ये सारे कमीशन बनते हैं और ये सब चीज़ें निकलती हैं तो उस पर लेकिन किरदार तो उसमें देखें ना, सियासी किरदारों को तो आप कह सकते हैं, मगर उसके अंदर कुछ रिटायर्ड जर्नैल भी शामिल थे, क्या उनका भी एहतसाब होगा? फिर उनके नाम के लिए भी तैयार होंगे? आप 13 या 14 से मामला खोलते हैं, जो पहला धरना जब हुआ है उसके बाद में, जिसमें अंपायर की उंगली की बार बार बात होती थी, वो पहले तो इमरान खान से पूछा जाए वो अंपायर कौन है और कौन सी उंगली है उसकी, बताएं तो सही, आप उसकी कोई शनाख्त बताएं। सबसे पहले तो उनसे ये पूछा जाए ना बुला के किसी कमीशन में, तो वहाँ से ही सारा कुछ स्टार्ट हुआ। आप उसके पीछे जाना चाहते हैं ना, फिर मुशर्रफ का coup आ जाएगा, उससे पीछे जाना चाहते हैं और लगे, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2013, 2013 से स्टार्ट कर लेते हैं। और जो किरदार इसमें आए हैं उनका पता कर लेते हैं। देखें, चेंजेस जो हैं 2013 से लेके अटेम्प्टेड चेंजेस या जो चेंजेस आई, जो वारदातें हुई, वो वारदातें जो है PTI की भी ले लें, जो हमारी हम जो जिनका पंजाबी में कहते हैं उलामा देते हैं, हमसे भी ले लें, उनसे भी ले लें और कमीशन उस पर बना लें। उसके बिल्कुल सही बात है। 2000 अब देखें तो फिर सच्चाई कमीशन बनना चाहिए ना। फिर चले 10 साल को, अगर आप कह रहे हैं कि पिछले 10 साल को आप ले लेते हैं तो उसमें फिर लेकिन किरदार तो वहां से भी आएंगे आप ना, देखें उनका एहतसाब भी होगा फिर। जी बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो आप देखें कि फैजाबाद कमीशन जिसकी आपने बात की कि आपसे कुछ नहीं पूछा गया, उसमें चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि जनरल फैज को उसमें से फारिग कर दिया गया, बरी करने के लिए कमीशन जो है उसने पूरा किरदार अदा किया है, जो भी हाल ही की बात है। नहीं, ये चीफ जस्टिस ने कहा जी है जी ना, जी, ये उन्होंने एक किस्म का ये भी उलामा ही दिया ना। जी जी बिल्कुल दिया, उन्होंने कहा कि उनको बचा लिया गया, उसमें उनको शिकायत की गई जी। तो यही मैं आपके प्रोग्राम में कह के गया हूँ जी, मैं जो प्रोग्राम में कह गया। तो फिर कैसे एहतसाब होगा सर? फिर या इस कमीशन रिपोर्ट में से उनको बचा लिया गया है, तो 2014 से जो धरना और बाकी चीजें उसमें जो किरदार है गैर सियासी। देखें, मैंने कल टीवी पे कहा है, एक रियल एस्टेट टाइकून मियां नवाज शरीफ के पास आते हैं और कहते हैं आप इस्तीफा दे दें। मियां नवाज शरीफ आगे से इनकार कर देते हैं, जिस तरह उन्होंने गुलाम इसहाक को भी किया और जिस तरह उन्होंने मुशर्रफ को भी किया। महमूद ने भी तो यही कहा कि आप इस्तीफा दें, उनको भी इनकार किया। मियां नवाज शरीफ का एक अटल इरादा है और उसने तारीख ने साबित किया है कि वो अपने इरादों पे कायम रहता है, झुकता नहीं है, अल्लाह के फजल से, उसकी मेहरबानी से। लेकिन उस बंदे ने साथ ये भी कहा कि मैं जब आपके पास आ रहा तो मेरी बेगम ने कहा था मियां नवाज शरीफ ने नहीं मनाएगा तो चलेगा होते, तो आप वही साबित हुआ है कि आप नहीं माने। तो मैंने कहा मैं नहीं मानूंगा, मुझे ठीक है हटाना है तो हटा दें, कोर्ट के जरिए जो आपने साजिश तैयार की हुई है करा दें। उनसे भी पूछा जाए किसने भेजा था। अगर इतने बड़े बड़े लोग जो हैं, जो अपने आप को इनविंसिबल समझते हैं, कोई नाकाबिले तस्खीर हैं, वो किन के कहने पे आके एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि तुम इस्तीफा दे दो। और ये बात जो है 2014 की बात है जी, जब दरवाजे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरवाजे पे PTI के वर्कर्स पहुंच गए थे, टीवी पे हमला हुआ था, नेशनल असेंबली पे हमला हुआ था, एक वो जो नौजवान था SP, उसको लटा के इन्होंने सड़कों पे मारा जो है। जी हाँ, ये कौन लोग थे? बिल्कुल। लेकिन खाई साहब, फिर अब ये इसके ऊपर आप लोगों की इस वक्त हुकूमत है, इस पे आप चाहें तो कमीशन बना सकते हैं, चाहें तो ये लाइव ब्रॉडकास्ट हो सकता है, तहकीकात हो सकती हैं, उन किरदारों को तलब किया जा सकता है। अब आपके हाथ में, आप हुकूमत तो हैं बहरहाल। बिल्कुल, मैं बिल्कुल तो इस बात को तस्लीम करता हूँ। कल ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, DG ISPR की, उन्होंने कहा है कि कमीशन बनाएं। और जब एक ISPR जिस अदारे का तर्जमान है वो कह रहा है कि ये कमीशन बनाएं, तो मेरा ख्याल है द गवर्नमेंट, मैं अपनी तरफ से ये बयान दे रहा हूँ, ये हुकूमती बयान नहीं है, एक सियासी वर्कर का बयान है कि गवर्नमेंट को कमीशन बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना और 9 मई का भी जो है वो जो है जो भी उसकी इन्वेस्टिगेशन है वो कर ली जाए, उन किरदारों को बुलाया जाए जो वीडियो के ऊपर जो जिन लोगों के चेहरे जो है शनाख्त हुए हैं या शनाख्त हो सकते हैं, उन लोगों को बुलाया जाएगी। अब देखें ना, ये चीज़ें वो कहते हैं कि ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं इमरान खान की तरफ से। अब इमरान खान मुकरने पे 5 मिनट नहीं लेता, मुकर जाता है। आज कुछ कहेगा, कल कुछ कहेगा, परसों कुछ कहेगा।
वो किसी चीज़ पे इसके सारे सबूत तो मौजूद होंगे ना? सारे सबूत मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। तो फिर क्यों अदालतों के अंदर क्यों मामला नहीं देखे जा रहे, क्यों स्पेशल कोर्ट्स नहीं बनी? चले मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर तो बहुत सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, लेकिन ये स्पेशल कोर्ट्स में तो हो सकता था सर। नहीं बिल्कुल, और सर मेरा ख्याल है कि एक ऐसा मरहला अब आ गया है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो होगी उन लोगों की, और जिन लोगों के चेहरे जो है नज़र आते हैं, जो ललकार रहे हैं GHQ के बाहर खड़े होकर या कोई कमांडर के घर के बाहर खड़े होकर या मियाँ वाली में या कहीं और जो है ललकार रहे हैं, उन लोगों को जो अगर कोई टीवी पे जिसने माफ़ी मांगी हुई उसके आप फिर माफ़ी मांग लेते हैं वो लोग जो है, तो फिर तो ऑफ़र है कि भाई माफ़ी मांग लो, तो अपने जो भी किया कराया उस दिन 9 मई को उसका जो है आप रिग्रेट करें, आप पछताएं तो फिर। और अगर इमरान साहब के बारे में भी एविडेंसेस मौजूद हैं, अगर इसको भी अगर अदालतों में देखा खुद बयान दे रहे हैं, उनके हवारी बयान दे रहे हैं, मैं और आप तो नहीं बयान दे रहे, वो दे रहे हैं। ये जो लोग टीवी पे आए थे जिन्होंने गाने गाए हैं टीवी के ऊपर, अब वो कहते हैं जी फरमाइशी प्रोग्राम था, तो ये गल नाम तो उन्होंने अपने लीडर का लिया हुआ है, मैंने तो आप लेने की दूर की बात है, मीडिया या सियासतदान, मैं तो पार्टीजन होना। अगर वो कहते हैं कि हमने जबर के तहत ये सारा कुछ किया था, तो अब कह दें कि हमने जबर के तहत किया है और हम सारे उसको कंडेम करते हैं। जो अदालतें नहीं मानती ना, अदालतें नहीं, मैं अदालती बात नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम वो अपने आप को तो अब्सॉल्व कर सकते हैं ना, अपने आप को बरी ज़िम्मा क्यों नहीं करते वो अपने आप को बरी ज़िम्मा? और अदालतें अगर वो ये मामला जाते हैं, आप कहते हैं अब होना चाहिए, तो अदालतें तो रिहाई दे रही हैं, देती हैं बहुत सारी चीज़ों में, वो कहते हैं एविडेंसेस मौजूद नहीं है, प्रोसिक्यूशन मजबूत नहीं है, उसका फिर क्या करें? चलें, ये एक कानूनी पहलू है, मैं उस पर कोई ऐसा कमेंट ना कर दूं जिससे कोई केसेस के ऊपर को असरअंदाज हो, मेरा कमेंट जो है कोर्ट हो जाए, इसलिए मैं अवॉइड करूंगा उस पर कमेंट करना। लेकिन ये भी एक ओपिनियन है कि जी अदालतें कह रही हैं कि ये एविडेंस जो है मजबूत नहीं है, मैं कह रहा हूँ एविडेंस मौजूद है। जो आपने कहा है एक लंबी लिस्ट है इनके कारनामों की 2013 से लेके अब तक, अगर हमने कुछ किया है तो हम भी कटार में बिल्कुल कटार में जाएंगे, बिल्कुल कटार में जाएंगे। कल 9 मई कुछ भी अगर फिर कुछ ऐसा होता है, एक तो आपको क्या लगता है कि कोई खुदा ना खास्ता फिर अमन अमान की सूरत हाल खराब तो नहीं होगी, होगा तो क्या? PTI से कुछ भी तवक्को की जा सकती है, बिकॉज वो किसी असूल या किसी ज़ाब्ते को नहीं मानते, और माशरे जो हैं या मुल्क जो हैं या कौमें जो हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए असूल और ज़ाब्तों की ज़रूरत होती है। वो एक हजूम है और वो एक कल्ट का हिस्सा बना हुआ है। वो हजूम जो है हर कल्ट की एक ज़िंदगी की मियाद होती है, वो कुछ देर तक वो पीक करता है, उसके बाद वो खुद जो है, आप दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड पिछले सैकड़ों साल की तारीख ले लें, कई कल्ट आए और कई कल्ट जो है ना वो ख़त्म हो गए, क्योंकि इसकी बुनियाद कोई नहीं है, इसकी बुनियाद कारकर्दगी पे नहीं है, इसकी बुनियाद किसी अचीवमेंट पे नहीं है, इसकी बुनियाद किसी बयाने या नजरिए पे नहीं है। बिल्कुल। तो ये चीजें जो है ये लास्ट नहीं करती जी, तो जैसे दवाम नहीं है, उसके लिए कुछ लेजिस्लेशन भी आपके ख्याल में है, कुछ हो सकती है? हो सकती है। देखें, आप तारीख में भी जाके देखें कि दवाम उस चीज़ को है जो जज्बातियत पे जिनकी बुनियाद थी उन पे उनको दवाम नहीं है। दवाम आज भी किसी नज़रिए को, किसी मज़हब को, किसी सियासी बयानिए को आज भी अगर है तो उन बयानियों को, उन नज़रियों को, उन मज़ाहिब को, मैं और भी मेरे वर्ड्स मेरे ज़हन में आ रहे हैं, दवाम वो है, हमेशगी उनकी है जिनकी बुनियाद जो है किसी कारकर्दगी। सर लास्ट क्वेश्चन, क्या बतौर हुकूमत आप खान साहब से को मुज़ाकरात की दावत देंगे या मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं? सुना है नवाज शरीफ साहब भी तैयार हैं इसके लिए। देखिए, मियाँ शहबाज शरीफ तो ऑन रिकॉर्ड है, हम सियासी लोग हैं, हम दरवाजे नहीं बंद करते, गुफ्तगू के दरवाजे नहीं बंद करते, लेकिन अगर कोई इसका फ़ैसला होना है तो इस चीज़ का, इस गुफ्तगू का कोई नताइज वाली गुफ्तगू जो है, किसी रिज़ल्ट ओरिएंटेड गुफ्तगू अगर होनी है तो उसमें 9 मई जो है सर फहरिस्त है। जब तक 9 मई का अज़ाला नहीं होता बाकी बातें तो आप यू कैनॉट इंसल्ट जो शोधा हैं जिन्होंने इस, देखें आप बात सुने,
जो सियाचिन पे की बुलंदियों पे सब जीरो टेम्परेचर्स में जो एक सिपाही वहाँ पे खड़ा है, गार्ड कर रहा है, आपकी हिफाजत कर रहा है, आपके मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहा है, उसको क्या तल्लक है कि मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या कह रही हैं, या इमरान खान क्या कह रहे हैं। उसको तो ये उसका तो नजरिया ये है कि मैंने इस मुल्क की हिफाजत करनी है, मैं उसके लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, और अगर मुझे जान देनी पड़ी तो मैं जान भी दूंगा उसके लिए। इसी तरह कोई सियालकोट के बॉर्डर पे खड़ा है, कोई कहीं पे बॉर्डर, बिल्कुल वो तो अपना काम आप उनके जो उनकी पोजीशन जो है, या उनका तकद्दस जो है, या उनके पेशे की जो सैंक्टिटी है, आपने उसको चैलेंज कर दिया, उनकी कुर्बानियों को चैलेंज कर दिया। तो इसलिए इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज, इस पे कॉम्प्रोमाइज, कथित तौर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ये जो ट्रांजैक्शन जो है, जो 9 मई वाली ट्रांजैक्शन जो है, इसको अपनी मंतकी अंजाम पे पहुंचना पड़ेगा, और जो लोग इसके परपेट्रेटर्स हैं, जिस तरह उन्होंने कल कहा है, या माफी मांग लें, और माफ़ी मांग लें, और एक जो है वो उसकी कि रिपेंट करें कि माफ़ी की एक गलती हुई है और हम उस पर रिपेंट करते हैं, वरना मजीद सख्ती बढ़ेगी। सख्ती क्या बढ़ेगी, फिर प्रोसिक्यूशन होगी, फिर जो है जिस तरह होती है किसी भी मुल्क में। आप अमेरिका का मिसाल लें जी, वो टॉलरेट कर रहे हैं फ़लस्तीन के खिलाफ मूवमेंट को, फ्रांस कर रहा है, बरतानिया कर रहा है, सारी दुनिया में जो है उस जेनोसाइड, उस कत्ले आम के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ टकराव है इस चीज़ का, एस्टैब्लिशमेंट इजराइल को सपोर्ट कर रही है, वो क्रश कर रहे हैं उन लोगों को। वहाँ पे यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट मुसलमान है, कोलंबिया की यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट मुसलमान है, उसने बंद कर दी, उसने पुलिस बुलाएगा, इनको गिरफ्तार करो सबको। तो रेड लाइन है ना हर मुल्क में, बिल्कुल है, मगर उसमें बहुत सारे जो बेगुनाह है उसको तो उनको तो रिहाई मिल सकती है ना। बिल्कुल, जो बेगुनाह है बिल्कुल मिलनी चाहिए, उनके लिए तो होनी चाहिए। गुनाहगार की प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, कानून और कायदे के मुताबिक उसके खिलाफ मुकदमात जो है अपनी मंतकी अंजाम तक पहुंचने चाहिए। लेकिन अगर आप देखें कि एक तीसरा मुल्क है, उसके दफा के लिए अमेरिका में, यूरोप में, और रोना पिटना पे आया है उन्होंने कि यहाँ जुलूस क्यों निकल रहे हैं। तो कल जो है 2 मेंबर्स हैं कैनेडियन पार्लियामेंट के, उन्होंने वो जो रुमाल है फ़लस्तीनियों का, चेक रुमाल जो वो पहना हुआ था, उन्होंने उनको पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया है। ऐसे ही रेड लाइंस हैं ना, हर जगह रेड लाइंस हैं, तो हम अपनी फौज के लिए रेड लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते? क्यों नहीं कर सकते हम कि ये शोहदा जो है हमारी रेड लाइन है। खान साहब भी रेड लाइन थे, बाय द वे, खान साहब भी रेड लाइन थे, उनकी वर्कर्स कहते हैं आज भी उनकी रेड लाइन है खान साहब। नहीं, ये रेड लाइनें तो आती जाती रहती हैं ना, लेकिन दवाम तो एक नजरिए को है, दवाम जो है मुल्क को है, इस कौम को है, इस वतन को दवाम है। मैं भी नहीं रहूंगा, और भी लोग नहीं रहेंगे, सब लोग आएंगे, खान साहब भी चले जाएंगे, सब चले गए, बहुत से लोग आए जो नाकाबिले तस्खीर थे, लेकिन तस्खीर जो है फिर मौत जो है वो तस्खीर कर लेती है।